Well, my name is Zikria. I did my MD and MPhil from University of the Punjab and PhD from University Science Malaysia. And my PhD work was related to antimicrobial resistance. So that's why my today's topic is also related to that. And it's about clinical implications of basic pharmacological concepts of antimicrobials. And it's an introductory session. I just try to give you an overview that what are the clinical implications of few basic concepts of antimicrobial. And because this session is all about, it comes under the pharmacology series of lectures related to pharmacology. So I'll also try to connect that with the pharmacology, and especially what is the importance of studying pharmacology in detail. Screen नजर आ रही है ना? जी सर आ रही है. ठीक हो गया. Okay, so before starting that, I'm really thankful to the PharmaEnclave, Inam Saab और उनकी team, Umar, Mugira, for having me for this lecture. So the outline of this presentation is, first is the background of antimicrobials. What's the importance of studying this antimicrobial topic under pharmacology? Because I think it's very important. किसी चीज की importance पता हो ना, that why are we studying this topic, then it will increase the interest. अगर हमें पता है कि यार इसका ये फायदा है तो हम ज्यादा इंटरेस्ट से उसे पढ़ेंगे और उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेंगे. So I'll try to highlight a few important things related to the antimicrobials. And we are studying this subject of pharmacology for what? For the human being, for the welfare of human being. So इंसानों को उसका क्या फायदा है? So I'll just try to highlight that in that. Then drug discovery. Again, drug discovery, that with the pharmacology, we are studying pharmacology. One of the main reasons of studying pharmacology is to find out new mechanisms, new pathways. And what's the connection of this drug discovery with the antimicrobial? Why is it so important to study the drug discovery with reference to the antimicrobials? Then we'll be studying basic concepts of physiology and pathology. आपने pharmacology जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि start में कुछ basics वो pathology, physiology दी होती है of that particular disease. Cardiovascular का chapter होगा, then it will start with some basic physiology of cardiac cycle, or the normal heartbeats, normal blood pressure, and then pathological condition. ठीक है? So उसकी क्या importance है? Then basic pharmacology, basic pharmacological concepts related to the pharmacokinetics and dynamics. And lastly, the clinical pharmacology. And my main objective is, because I am a teacher of clinical pharmacy, I am studying clinical pharmacy from the last around 12 years. I started from Punjab University as a part-time teacher to contractual teacher. For 6 years I worked there. Then I moved to the University of Lahore. And now currently I am working in the Bahauddin Zikria University as an assistant professor pharmacy practice. So I'll connect all these, like that main topics or the outlines of my studies with the clinical implications. So let's start. Infectious disease. We know there is a huge burden. We are concerned about the infectious disease because of the patient safety. और recently जो COVID में हुआ है, तो उसने तो बहुत ज़्यादा highlight कर दिया ना the importance of infectious disease, because these are the communicable disease. एक patient से दूसरे patient में transfer होती है, तो इसकी importance तो अभी हमने COVID में देख ही ली है. Now, if we talk about the infectious disease, there was a pre-Fleming era, a time when there was no antibiotic. But now, in pre-Fleming era, importance थी infectious disease की. Then the Fleming discovered that magical bullet, penicillin, जिसने कि दुनिया में एक नई आप कह सकते हैं उसे, हम तभी ये मैजिकल बुलेट कहते हैं. कोई भी इन्फेक्शन को इजीली ट्रीट किया जा सकता था. But quite unfortunately, because of some irrational uses, post antibiotic era की तरफ हम जा रहे हैं.
time where we have antibiotic, but we are unable to manage the patient because of antibiotic resistance. So there is antibiotic resistance, and what are the reasons of those antibiotic resistance? And that is the one of the main reason is irrational use. If we'll use the antimicrobial use, or if we rationalize the use of antimicrobials. Now this is important, that why are we studying pharmacology? Pharmacology is all about having in-depth knowledge of drugs. And if we talk about the antibiotic, so in-depth knowledge of antibiotics. And as I told you that pre-Fleming era to post-antibiotic era is, and the problem with the post-antibiotic era is the antimicrobial resistance. And one of the main reasons of that resistance is irrational use of antimicrobial. Antibiotics का rational use नहीं है. What is rational use? As per recommended standard guidelines. और उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? Resistance हो जाती है. तो हम pharmacology जो पढ़ेंगे उससे क्या होगा? Will be able to know that what is the rational use of antimicrobials. ठीक है? और उससे क्या होगा? Definitely morbidity, mortality और health expenditure कम हो जाएगा. लेकिन if we having a minimum knowledge or we don't have sufficient knowledge related to the antimicrobials, तो क्या होगा? बर्डन इंक्रीज होगा, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी. और ये हम कैसे कम कर सकते हैं? एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप. ये आगे जाके हम बातें करेंगे. क्विकली मैं ये सारी चीजें नहीं पढ़ता. इन शॉर्ट ये है कि देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. As I told you that initially I'll do the importance of studying this topic. एंटीमाइक्रोबियल pharmacology में पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, अब मैं क्विकली अगर एक दो चीजें बताऊं. आपको पता है अभी दुनिया में टोटली जो दुनिया में है ना, टोटल दुनिया का जो पैसा है इट्स अराउंड $250 ट्रिलियन. और जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है ना, लिसन, फार्मास्यूटिकल मार्केट जो पूरी दुनिया की है ना, वो तकरीबन $2 ट्रिलियन की है. $2 ट्रिलियन. लेकिन जेम्स और नेल की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली इफ विल नॉट बी एबल टू मैनेज द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, देन व्हाट वुड हैपन? बाय 2050 तक the burden on the economy of the world would be $100 ट्रिलियन. ठीक है, $100 ट्रिलियन दुनिया की इकोनॉमी पे बर्डन सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल का होगा. हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि हमारे छोटे होते ना, हम देखते थे घरों में सेप्ट्रॉन की टैबलेट थी, एक 50 पैसे 25 पैसे की टैबलेट थी. हर तरह का इन्फेक्शन, किसी को कुछ भी हो सेप्ट्रॉन खिला दो, आराम आ गया. Now we have infections and we are unable to manage those infections with the meropenem, which is very expensive drugs, thousands of rupees. ठीक है. अच्छा, एक और स्टडी है, ये नीचे आपकी लाइन लिखी हुई है, ये भी जरा इंटरेस्टिंग है. यूरोपियन कंट्रीज में ना उन्होंने AMR का देखा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लोगों की डेथ होती है. तो उन्होंने देखा है 33,000 लाइव्स पर ईयर, 33,000 लोगों की डेथ हो रही है पर ईयर ओनली बिकॉज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. और इसे अगर उन्होंने इक्वलाइज किया ना, अगर इक्वल करें, इट्स लाइक 1 बोइंग 747 क्रैशिंग ईच वीक. हर हफ्ते अगर एक जहाज क्रैश कर जाए ना, ठीक है, इतने लोगों की डेथ हो रही है सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. सो दिस इज जस्ट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग दिस टॉपिक ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड एंटीमाइक्रोबियल्स. डेफिनेटली फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो ग्लोबल बर्डन पे ऑलरेडी है 1.2 मिलियन, ये कोर्स स्टडी है. इसी तरह पाकिस्तान पे भी इसका बर्डन बहुत ज्यादा है. तो क्विकली इस पे इतनी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एंटीबायोटिक्स को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है कि इवन द यूनाइटेड नेशंस क्या है, जिसमें सारी कंट्रीज मिलके बैठती हैं. ठीक है. एंड अंडर यूनाइटेड नेशंस देयर इज अ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHA. पूरी दुनिया के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वो उस पे बैठते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस में भी डिस्कशन हुई है इस बारे में, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी डिस्कशन हुई है इस बारे में, दैट वी मस्ट रैशनलाइज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड देयर इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR. ठीक है. तो मैं अभी ग्लोबल एक्शन प्लान पे डिस्कस तो नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक ऑफ स्टडीइंग द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीबायोटिक्स. ओके, दिस इज द बैकग्राउंड. नेक्स्ट मैंने बताया था कि आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ड्रग डिस्कवरी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ डोमेन ऑफ फार्माकोलॉजी.
Pharmacology में we'll try to find out different mechanisms. So a quick history up to 2010. सेल्वारसन फर्स्ट थी, लेकिन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट फर्स्ट ड्रग पेनिसिलिन थी, फिर सल्फोनामाइड आई 1928 में, पेनिसिलिन आई, फिर सल्फोनामाइड आई, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सो ऑन. 1990 से 2010 तक अभी कोई एंटीबायोटिक नहीं आई उसके बाद. अच्छा, अनदर थिंग, ये एंटीबायोटिक्स आती थी, लाइक पेनिसिलिन 1928 में डिस्कवर हुई एंड 1941 में दे लाइक आइसोलेटेड फर्स्ट रेजिस्टेंट माइक्रोब. सल्फोनामाइड्स की रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई इन 1932 और 1932 में ये डिस्कवर हुई एंड लाइकवाइज. ठीक है, इट मींस द लाइफ स्पैन ऑफ एंटीबायोटिक इज वेरी शॉर्ट. दैट्स व्हाई there is a dramatic decrease in the antibiotic drug approval. Now listen very carefully. It's quite unfortunate कि वैसे पाकिस्तान में तो ड्रग डिस्कवरी का काम नहीं है, लेकिन फार्माकोलॉजी पढ़ने की एक मेन रीजन है. दुनिया में जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो पीएचडी फार्माकोलॉजी वगैरह की तरफ जाते हैं, उनका मेन एक काम क्या है? दे ट्राई टू फाइंड आउट न्यू मैकेनिज्म्स, न्यू पाथवेज टू डिस्कवर ड्रग्स. लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम number of antibiotics approval dramatically decrease हो रही है. You know why? Reason is that if like I am running a pharmaceutical company and if I have two options to launch a new anti-diabetic drug and new antibiotic or new anti-cancerous or new antibiotic, तो क्या होगा? मुझे पता है यार, मैं anti-diabetic launch करूंगा, then its lifespan is very long. डायबिटिक पेशेंट मुस्तकिल यूज करेगा, शायद वो मेरी ड्रग 100 साल भी मार्केट पे डोमिनेंट रहे. लेकिन एंटीबायोटिक का क्या है? एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस आ रही है, सो दैट्स व्हाई उसको लॉन्च करना इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव. तो क्या हुआ है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने क्या किया है? दे आर नॉट लाइक डूइंग रिसर्च टू लाइक इन्वेस्ट देयर मनी ऑन एंटी माइक्रोबियल्स. वो नई डिस्कवरीज पे नहीं आ रहे. तभी देखें बहुत सारी स्टडीज हैं, लाइक ये 2021 तक एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ है. उन्होंने देखा है कि अभी जो पाइपलाइन में सिर्फ 71 है जो पाइपलाइन में. ठीक है, तो अभी मार्केट में लॉन्च बहुत कम हो रही है अभी. उसकी रीजन ही क्या है? लाइक वाज टैकलिंग द ग्लोबल पाइपलाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स. अनदर स्टडी कि हमारे पास बहुत लिमिटेड एंटीबायोटिक्स हैं जो आ रही हैं. उसकी वजह क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट टू डेवलप न्यू एंटीबायोटिक्स. नाउ third point, I told you that physiology and pathology, basic physiology and pathology is also very important. Studying physiology and pathology is also very important before like doing any pharmacological intervention in a patient. So there are few examples. Let's start with the curve 65 score. Curve 65 score is a diagnostic criteria for pneumonia. ठीक है, diagnostic criteria for pneumonia. What is curve 65 score? Like if the patient is in a hospital or in a clinic, we'll check 5 symptoms or the 5 characteristics or the 5 variables. First, patient confusion है कि नहीं है उसे. Second, उसका यूरिया लेवल कितना है, 19 से above है कि कम है. Third one is his or her respiratory rate. ये 30 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है कि इक्वल है. सिस्टलिक ब्लड प्रेशर और एज. ठीक है, अगर पेशेंट कंफ्यूजन है उसे 1 पॉइंट देंगे. अगर यूरिया लेवल इज मोर देन 19 विल गिव अनदर 1 पॉइंट. इफ द रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 30 पर बीट्स पर ब्रेथ्स पर मिनट, अगेन विल गिव 1 पॉइंट. इफ द सिस्टलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 60, अगेन विल गिव 1 पॉइंट. Age is above 65 will give 1 point. So it's mean cumulative. अगर सबको सारे पॉइंट मिलते हैं, अगर एक पेशेंट में सारे वेरिएबल्स हों, सारे करेक्टर्स हों, सारे फीचर्स हों, तो हम क्या होंगे? 5 टोटल नंबर होंगे. So it means या तो किसी में कोई भी नहीं होगा तो 0 है और मैक्सिमम में तो 5 है. So based on the score, अगर आप नीचे आए, based on that score, zero score mean we should treat that patient as an outpatient. 1 means treat as an outpatient.
2 means either outpatient or inpatient, and 3, 4. I just want to highlight the importance of studying physiology and pathology as well. Right? In pharmacology is yes about drugs, but definitely when you will apply your knowledge of pharmacology in clinical practice, it's very important to have that basic concepts of physiology and pathology as well. And this is the first example of community acquired pneumonia. Like the community, the decision to start any antibiotic, okay, it's based on what? It's pathological symptoms. Likewise, example, I'll not go in details, but if you have to either take decision to start antibiotic or not in case of upper respiratory tract infection, किसी को कि नज़ला जुकाम कौन से वाला है, वायरल है या बैक्टीरियल है, ठीक है, तो क्या एंटीबायोटिक लें, एंटी बैक्टीरियल लें या एंटीवायरल लें? अगेन ये कुछ कंपैरिजन है इन्फ्लुएंजा और कोल्ड के, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के. अगर ये सिम्टम्स होंगे तो बैक्टीरियल है तो डेफिनेटली विल स्टार्ट with the antibacterial. If it's viral, then there is no need to give antiviral or any antibacterial, because as per recommended guidelines, it's better to go for the symptomatic management. ठीक है. तो अगेन वही बात है कि हम अभी इन्फ्लुएंजा या कोई ये नहीं पढ़ रहे. एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हमें इंपॉर्टेंस क्या है टू study basic pathology and physiology. Another example is that TB. ठीक है, ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट. आपने टीबी के लिए मेडिसिन स्टार्ट करनी है कि नहीं, तो ये एक स्किन टेस्ट करते हैं, स्किन में उसका एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं वहां ड्यूरेशन कितना होता है और उसका जो एक दायरा सा सख्त सा दायरा बनेगा ना, उसका साइज क्या है. Either it is more than 5 mm, more than 10, or equal to or 15. और उसमें पेशेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं. So based on this, another diagnostic criteria will either start or will not start any anti-TB drugs. So these are the some other diagnostic features of TB again. ACID fast हम माइक्रोस्कोप से हम कल्चर रिपोर्ट भी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी करते हैं. इसी तरह हम पीसीआर भी करते हैं. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है. Just to again highlight the importance of diagnosis. Again, this basic physiology, pathology, we must be knowing the structure of the microbe. ठीक है, structure of the microbe, because structure of the microbe. जी उमर आप हो इधर? स्टूडेंट कोई पूछ रहे हैं कि एंटर होने का क्या तरीका, पता नहीं, चले आपका नंबर है. Okay, so the structure of the microbe. So we must be knowing the structure of microbe again, because based on that structure, जब हम again from antibiotics की pharmacology details पढ़ेंगे, then we'll be able to know that what's the importance of that. Cell wall है कि नहीं है, ठीक है. फिर इसी तरह ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव माइक्रोब हैं. फिर इसी तरह इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर करते हैं. ठीक है, तो हमें अगर बेसिक स्ट्रक्चर पता है माइक्रोब का और उस माइक्रोब के क्या फीचर्स हैं और उस बेस पे हमारी एंटीबायोटिक्स कहाँ इफेक्ट करती है. ठीक है, हियर ADR or severe or any bad effect or the side effect on the human body. And what's the main reason of that? Because the microbial cell is different than as compared to human cell. For example, cell wall. Human body में cell wall होती नहीं. हमारे जो cell है उसमें simple cell membrane है. That's why now listen only one thing here. Cell wall is a characteristic feature of the microbes. ठीक है, और हमारे cells में cell membrane होती है. That's why when we'll be studying the antibiotics,
which affect by killing or inhibiting the synthesis of cell wall, they are having minimum side effect. सबसे कम साइड इफेक्ट होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के, पेनिसिलिन वगैरह, आपकी सेफ्लोस्पोरिन्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी रीजन ही क्या है कि ये इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो सेल वॉल है, और हमारी ह्यूमन बॉडी में तो सेल वॉल होती ही नहीं, इसलिए इनके साइड इफेक्ट भी कम। बट एज कंपेयर टू दैट डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, अब नो डाउट द डीएनए ऑफ द माइक्रोब इज डिफरेंट देन द ह्यूमन, बट स्टिल बिकॉज ऑफ सम सिमिलैरिटीज एडीआरस होते हैं। इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ह्यूमन बॉडी में भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, लेकिन क्या है एज कंपेयर टू माइक्रोबियल microbes it's quite different, so that's why as compared to the cell wall, yes, there are more side effects but less than the side effects associated with the cell wall synthesis inhibitors, ठीक है। so there are different classification of antibiotics based on their site of action, and there are different microbes having different, like more or less different microbial structure. gram positive कोकाई हैं, नेगेटिव हैं, एनारोब्स हैं, स्पायरोकीट्स एंड सो ऑन। इसी तरह दो मेन है, जैसे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगेन बेसिक आपकी फिजियोलॉजी है वो आपको डिटरमिन करती है। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव का और ये ग्राम नेगेटिव का। अब ग्राम नेगेटिव में क्या एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन है, बट देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब, देयर इज ओनली पेप्टिडोग्लाइकन and it's as compared to gram negative ये जरा सी thicker होती है। Again will be when you will be studying in detail about those cell wall synthesis inhibitor, then we'll be able to like know that because of this structural difference in gram positive and negative, there are different like mechanisms through which the drugs act, and also different resistance mechanisms. Resistance के mechanism भी different हो जाते हैं, effect भी different change हो जाता है। Reason क्या है, ग्राम नेगेटिव में एक आउटर सेल मेम्ब्रेन है, आउटर वॉल है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। अगेन अभी ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। देन बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है, कोकाए हैं, रॉड्स हैं, ठीक है। कोकाए में आगे एनारोब्स, एरोब्स, एरोबिक, एनारोबिक, फिर ग्राम पॉजिटिव में, फिर ग्राम नेगेटिव में एंड सो ऑन। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जो है वो ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। Now you know nowadays we are not concerned again. मैंने आपको पहले बताया वो $100 ट्रिलियन की बात बताई, मैंने बताया कि एक बोइंग 747 अगर हर हफ्ते क्रैश हो जाए, you know the reason is not these microbes or these microbes. The problem is these microbes, especially these red one. Now टॉप 3 प्रायोरिटी क्रिटिकल माइक्रोब्स अकॉर्डिंग टू द WHO। ये WHO ने एक ना प्रायोरिटाइज माइक्रोब्स की एक लिस्ट बनाई है, प्रायोरिटी 1, 2 and 3। नाउ लिसन, लाइक देयर इज अ एसिनेटोबैक्टर, ऑलरेडी एसिनेटोबैक्टर इज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब। ये खतरनाक माइक्रोब है, इट कॉजेज निमोनिया। आपको पता है इन्फेक्शन में जो सबसे ज्यादा डेथ्स जिससे होती है वो निमोनिया है, सेप्टिसीमिया है, ठीक है। तो सेप्टिसीमिया और निमोनिया टॉप ऑफ द लिस्ट है जिससे डेथ सबसे ज्यादा होती है। तो ऑलरेडी एसिनेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, एंटेरोबैक्टीरियेसी क्लास जिसमें क्लबसीला वगैरह आते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी सीरियस इन्फेक्शंस करते हैं, ठीक हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट, नाउअडेज वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एसिनेटोबैक्टर, वी आर कंसर्न्ड दैट, अच्छा अभी हम, आप जब ये फार्माकोलॉजी जिन बच्चों ने अभी तो नहीं पढ़ी हुई, कार्बापेनम इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। जब आप पेनिसिलिन पढ़ेंगे ना सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर, सो कार्बापेनम इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ग्राम नेगेटिव माइक्रोब में हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, जो बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो, देन विल गो फॉर वो मिरोपेनम, इमीपेनम, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव माइक्रोब है, यार मुझे शो नहीं हो रहा है यहाँ कहीं। यार अच्छा क्वेश्चन आया जी,
आवाज आ रही है ठीक? पहले तो एक क्वेश्चन आवाज नहीं ठीक। ओके, सो द वैंकोमाइसिन इज डेंजरस। अच्छा तो अहमद, अच्छा बेटा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, वी कांट से लाइक ये डेंजरस है। Every drug is a poison. It's basically the dose which convert like the drug into a poison. Now, yes, if few important point related to vancomycin are, आप बेसिक फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, देयर इज अ थेराप्यूटिक विंडो, ठीक है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन टू मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन टू minimum effective to minimum toxic concentration, and there is a gap between these two concentrations, and that is known as the therapeutic window, ठीक है। ये जो विंडो है ना, ये जो गैप है, ये बहुत नैरो होता है इन केस ऑफ व्हाट, वैंकोमाइसिन, ठीक है। ये गैप जो डिफरेंस बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, ये गैप बहुत नैरो होता है। क्योंकि गैप नैरो होता है, सो देयर इज एनी स्लाइट चेंज in the concentration of vancomycin could cause ADR, और vancomycin already हिकमतुल्लाह ने already बताया भी है कि it is nephrotoxic drug, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है ड्रग, तो उससे ये इसके ADR ज्यादा होते हैं। तो ये मेन, अगर हम इसका ये कहेंगे, इसकी नैरो थेराप्यूटिक विंडो ड्रग है। अच्छा, मैं अभी ये बता रहा था ना, एंटीबायोटिक, एंड कार्बापेनम इज मेनली फॉर द ग्राम नेगेटिव। वैंकोमाइसिन के बारे में एक और बात है इंपॉर्टेंट कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अभी हम आगे करेंगे स्टेप ऑरियस, तो स्टेप ऑरियस में हम देखेंगे वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस और मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, फिर भी इसका डेंजरस है। व्हाई? मैंने जैसे बताया, इसकी मेन रीजन ही ये है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर तो है। अच्छा, एक और बात सुने, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो एब्सोल्यूट इफेक्ट। अभी आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, देयर इज नो एब्सोल्यूट टर्म इन फार्माकोलॉजी, ठीक है। बाकी ये चीजें सारी नाम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा डिटेल बता देंगे। इट्स ओनली रिलेटिव टर्म, दैट डजंट मीन दैट ड्रग इनहिबिट द सेल वॉल, इट मींस इट ओनली इनहिबिट द सेल वॉल। वैंकोमाइसिन का स्ट्रक्चर बाकी भी बॉडी पे जाके इफेक्ट करता होगा, आपके नेफ्रॉन्स को भी जाके इफेक्ट करता है, उन्हें भी ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड बात ये, जैसे आप पढ़ेंगे ना आगे जाके, बीटा 1 इनहिबिटर और बीटा 2 इनहिबिटर, अल्फा 1 इनहिबिटर, अल्फा 2 इनहिबिटर, या सिलेक्टिव बीटा 1 इनहिबिटर, बीटा 1 ब्लॉकर और सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर, दैट डजंट मीन्स ओनली बीटा 1 ब्लॉकर, ठीक है। इट मींस दैट एज कंपेयर टू बीटा 2, बीटा 1 पे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अगर मैं इसको कह रहा हूं ना, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, दैट डजंट मीन कि अब ये सेल वॉल को सिर्फ इनहिबिट करता है, ये भी बात याद रखें। वो वैंकोमाइसिन है, एक ड्रग है, एक मॉलिक्यूल है, बॉडी में कहीं भी जाके तंग कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आपके नेफ्रॉन्स को जाके डैमेज कर देता है और नेफ्रोटॉक्सिटी करता है। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि इसकी थेराप्यूटिक विंडो भी बड़ी कम है। तभी क्या करते हैं बेटा, क्लिनिकली हमारे यहाँ तो जैसे शौकतखाना में ये हो रहा है, अदरवाइज नॉर्मली इफ वी गिव द वैंकोमाइसिन, लिसन, नॉर्मली जब हम मेडिसिन देते हैं तो क्या करते हैं, हम देते हैं मेडिसिन और जस्ट वी सी द इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब एक जो ड्रग दी है उसके दो काम हो सकते हैं, ईदर इट विल रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और इट कुड आल्सो कॉज द एडीआर, कोई भी एडीआर आए वो अपीयर हो जाए, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, या तो एडीआर को डिजीज के सिम्टम्स को कम करेंगे, डिजीज के सिम्टम्स को या तो कम करेंगे या क्या करेंगे, वो कोई एडीआर कर सकते हैं। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में व्हाट वी डू, वी सिंपली गिव ड्रग एंड वी जस्ट वॉच द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, कि ये ड्रग का इफेक्ट क्या आ रहा है, इधर थेराप्यूटिक इफेक्ट और एडीआर। But you know, there are few drugs like vancomycin and aminoglycoside and some anti-cancerous drug. We don't wait for their effect. We do a TDM, therapeutic drug monitoring. What is TDM? TDM mean we simply take the plasma blood sample of the patient and we check the concentration of the drug. कि प्लाज्मा में इसकी concentration क्या है, because already we have enough published data that if the concentration of the drug in the plasma is between this range,
then it is okay. If it is higher than that it means that it could adversely affect the nephrons. ठीक है? And if it is less than this concentration, it could cause like therapeutic failure, अपना इफेक्ट नहीं देगी. तो हम वैंकोमाइसिन के केस पे क्या भी करते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी करते हैं. अच्छा, एंटीबायोटिक की जनरेशन है वो होती है बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रम. ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. और सेकेंडली ये भी होता है कि कभी कभी एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, तो हम एक नया मॉलिक्यूल थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि उसकी इफेक्टिवनेस उन माइक्रोब के अगेंस्ट आ जाए. अच्छा, ओके, श्योर. ओके, आई विल ट्राई टू लाइक गो बाइलिंगुअल. ठीक है, चलें वापस. स्क्रीन नजर आ रही है? Yes sir, आ रही है. Okay, so I was discussing about the priority pathogen. So I was like discussing that it's not about Acinetobacter. We are not concerned that the world is not concerned about the Acinetobacter. The world is concerned about carbapenem resistant Acinetobacter. And the carbapenem is one of the broadest spectrum available antibiotics, especially for the gram-negative microbes. Okay? Likewise, the world is not concerned about the Pseudomonas. No doubt, Pseudomonas normally causes like the severe infection. Like, you know, if I classify pneumonia, as I told you earlier, that pneumonia is one of the leading, like one of the main reasons of death, infectious disease में. इसी तरह septicemia. The Pseudomonas is one of the main reasons of pneumonia. Likewise, Pseudomonas is one of the main reasons of septicemia. Now listen, you know, we classify the pneumonia into two classes: community acquired pneumonia and hospital acquired pneumonia. Which one is more dangerous? Hospital acquired pneumonia. Community acquired, normally the community acquired pneumonia is not that like, I guess एक आगे स्लाइड, हाँ आगे स्लाइड है, चलें अब देखें, यही देखें, चलें बाय चांस ये स्लाइड भी है. Now here you can see that this is community acquired pneumonia and this is hospital acquired pneumonia. So it's a vice versa. It's not about why community acquired pneumonia is less life threatening as compared to hospital acquired pneumonia, because here you can see hospital acquired pneumonia, one of the leading like causes of hospital acquired pneumonia, unidentifiable भी हैं: S. aureus, Staph aureus, Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella enterobacteriaceae में आता है भी, Acinetobacter. ठीक है. And if we compare this hospital acquired pneumonia with the community acquired pneumonia, here you can see mycoplasma है, streptococcus है, यहाँ staphylococcus है, streptococcus, hemophilus chlamydia. अब जरा यहाँ देखे जाके वापस क्रिटिकल में देखें, एसिनेटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, एंटेरोबैक्टीरियेसी में आपके क्लेप्सिला वगैरह आते हैं. ठीक है. स्टेफ ऑरियस देखें हाई में आता है. ठीक है. तो हमारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में क्या है, माइक्रोब्स जो ज्यादा खतरनाक है. और फिर वही बात है कि एसिनेटोबैक्टर इटसेल्फ खतरनाक है, लेकिन कार्बापेनम रेजिस्टेंट एसिनेटोबैक्टर is more like it's more problematic. Likewise Pseudomonas. अब स्टेफ ऑरियस ग्राम पॉजिटिव है तो ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट ज्यादा खतरनाक है. ठीक है. और इफ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान, you know, Pakistan, we have very limited data. Pakistan, right now, we are concerned about XDR typhoid, extended drug resistant typhoid. Extended drug resistant typhoid mean not effective, like only effective antimicrobial available in the market is one is the azithromycin for oral, or second one is the meropenem for parenteral. तभी पाकिस्तान में एक वार्निंग थी that if the patient is having typhoid, then we should try to avoid taking azithro for other conditions. ठीक है. अगर आपको नजला जुकाम हुआ है तो instead of taking azithro, it's better to take clarithrol. Why? क्योंकि पाकिस्तान में वो कहते हैं रिजर्व रखें azithro for typhoid patients. ठीक हो गया. तो ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट माइक्रोब हैं. ये मैंने चले ये भी बता दिया, द मोस्ट कॉजेटिव एजेंट्स. अच्छा, इसी तरह इसे सारा करने की जरूरत नहीं है. सो लाइकवाइज देयर इज ऑलरेडी वी हैव एनफ डाटा एंड द रिसर्चर्स, द क्लिनिशियंस, द प्रैक्टिशनर्स हैव क्लासिफाइड डिफरेंट diseases and the most commonly like the common microbes involved in that disease and the effective first line and second line antibiotics.
ठीक है. So just want to tell you about the most commonly like microbes involved in different infections. So this is all about that. Now let's come to the अभी तक जो मैंने पार्ट किया है वो फर्स्ट मैंने started with the background, the importance of studying the pharmacology of antibiotics. Then I gave you a overview of like drug discovery. ठीक है. Quite unfortunately in Pakistan we are not involved in under pharmacology in drug discovery. ठीक है. लेकिन yes pharmacologist globally जो pharma worldly जो दूसरी जहाँ companies जहाँ multinational companies है, one of the like main job description of the pharmacologist is to discover a new pathway further. तो मैंने ड्रग डिस्कवरी के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फार्माकोलॉजी. ठीक है. इंशाल्लाह आप में से कुछ बच्चे इफ यू विल गेट सम स्कॉलरशिप इंशाल्लाह एंड गो फॉर पीएचडी और पोस्ट डॉक और फॉर सम जॉब अब्रॉड, सो डेफिनेटली यू विल गेट that opportunity to work in different labs where inshallah you will be working in that part of pharmacology जिसमें आप एक नए पाथवे पे काम करेंगे. फिर मैंने बेसिक बताया कि अभी तक मैंने बताया टू स्टडिंग बेसिक फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी उसी में है, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी. तो आपने देखा कि इसका नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर व्हाट, फॉर डायग्नोसिस. ठीक है. एंड फॉर टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट एंटीबायोटिक और नॉट. Now let's come to antibiotics. Okay. If we talk about the antibiotic, there are different classes of antibiotic. अच्छा, मैं फिर वही बता दूं कि ये definitely ये lecture एक introductory session है. It's not about कि मैं हर चीज को डिटेल में बता सकूंगा, which is not practically possible. Upcoming lectures जब होंगे तो उसमें हर चीज को, जैसे हम पेनिसिलिन की अभी बात करें, अब मैंने भी ऑलरेडी बताया कि एंटीबायोटिक की डिफरेंट क्लासेस है, तो पेनिसिलिन है, डेफिनेटली पेनिसिलिन को ही डिटेल में पढ़ें तो काफी हमें कुछ लेक्चर्स चाहिए टू कवर दैट टॉपिक. सो एनी हाउ, सो दीज आर द ए गुड ओवरव्यू और द यू कैन से a table of classification of antibiotics starting from the penicillin, beta-lactam inhibitor, beta-lactam antibiotics, penicillin, cephalosporin, then penicillins पे आगे अमाइनो पेनिसिलिन है, न्यूट्रन पेनिसिलिन है, एंड सो ऑन. सेफ्लोस्पोरिन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स हैं. ठीक है. कार्बापेनम्स हैं जो आजकल सबसे ज्यादा हैं कि हम रिजर्व ग्रुप में रखते हैं, मेरोपेनम, अल्टापेनम, मोनोबैक्टम है, एस्ट्रियनम है, ग्लाइकोपेप्टाइड है, वैंकोमाइसिन जिसमें टैलावेंसिन है, डेल्बावेंसिन है जो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है. अच्छा, इसी तरह एक इंटरेस्टिंग है ये कोलिस्टिन, पॉलीमैक्सिन बी, आइसोनियाजिड, जिसमें स्पेशली कोलिस्टिन है इंटरेस्टेड. अब इसकी भी देखें इंपॉर्टेंस. आपको पता है कोलिस्टिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1920s या 30s में, 1930 में डिस्कवर्ड हुई थी. बट दिस ड्रग वाज एसोसिएटेड विद सम नास्टी एडवर्स इवेंट्स, नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह सीवियर करती थी. दे सिंपली विथड्रॉ दैट ड्रग फ्रॉम द मार्केट. Now we are, you can say, we are forced to use this antibiotic against. Why? Because we have limited options. हमारे पास एंटीबायोटिक के ऑप्शंस ही बहुत कम है. मैं आगे जाके आपको बताऊंगा पाकिस्तान के हालात तो बिल्कुल ही, हम बस अभी यूज कर रहे हैं, अभी देखें कितना अर्सा चलता है काम. तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं. तो कोलिस्टिन एक ऐसी एंटीबायोटिक थी जो दोबारा यूज होनी शुरू होगी. Likewise, cell wall protein synthesis inhibitor में अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स. ठीक है. आगे अमाइनोसाइड्स में आपकी जो राइबोसोम्स का 30s यूनिट और 50s यूनिट पे डिफरेंट करती हैं. जैसे 30 में अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन है, फॉर 50s पे ऑक्सोजोलिडोन्स एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स और क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड, लिंकोसामाइड्स like DNA synthesis inhibitor, fluoroquinolones, folic acid synthesis inhibitor, sulfonamide, Septran वगैरह, DNA synthesis inhibitor, mRNA synthesis inhibitor, and relatively this new class of inhibitor of adenosine triphosphate, इसमें बेडाक्विलीन आती है जो एंटी टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में. So these are the different like classes of antibiotics. Now few basic concepts. ठीक है. बैक्टीरियोसिडल भी एंटीबायोटिक्स हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं. बैक्टीरियोसिडल कौन सी हैं? दे
kill the microbe. Bacteriostatic कौन सी हैं? Bacteriostatic hinder like the replication of the microbe. तो इसके बारे में एक दो बातें मैं जैसे मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ. Normally, if like say for example, if the patient is admitted in the cancer hospital, Shokathanam, so preferably we go for the bactericidal. Why? Because bacteriostatic क्या करती है? ग्रोथ को इनहिबिट करती है, रेप्लिकेट होने नहीं देता. फिर क्या होता है? बॉडी की इम्यूनिटी उसको किल कर देती है, माइक्रोब को, राइट? बट बैक्टीरियोसिडल सिंपली किल द माइक्रोब. ठीक है, इवन इफ द बॉडी इम्यूनिटी इज वीक. दैट्स व्हाई मैंने ऑलरेडी जो मैंने देखा हुआ है, लाइक द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स इन शोकथानम कैंसर हॉस्पिटल, पैरासिलिन. ये पेनिसिलिन है, ठीक है, आपकी पेनिसिलिन क्लास की है, which is बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. तो पैरासिलिन क्या है? बैक्टीरियोसिडल है. इसी तरह क्या है आपकी ड्रग का एरिया अंडर कर्व इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एरिया अंडर कर्व इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें एक एग्जांपल जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की है. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या है? वो कहते हैं कि हम पीक कंसंट्रेशन इंस्टेड ऑफ गिविंग मल्टीपल डोजेस, अगर वन पीक कंसंट्रेशन जल्दी आए तो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू कि अगर हम मल्टी डोजेस यानी बार बार डोजेस लें उसकी. ठीक है, तो इसलिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंस इस तरह है. माइनोग्लाइकोसाइड की एग्जांपल आ गई. इसी तरह पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी है. ठीक है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट मींस कि हमने माइक्रोब एंटीबायोटिक यूज की, बट इवन आफ्टर गिविंग एंटीबायोटिक स्टिल माइक्रोब्स की ग्रोथ हो नहीं पा रही. उसकी वन ऑफ द मेन रीजन इज अगेन बॉडी इम्यूनिटी है. ठीक है, इसी तरह एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट है कि वो माइक्रोब पे रहता है, तो ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट रहता है. देन देयर आर सर्टेन पेशेंट फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक, स्पेशली लाइक रीनल इम्पेयरमेंट. ठीक है, renal impairment, hepatic impairment. So these are the different drugs. Again, there is detail about that, about the adjustment of the doses. Sir, kindly can we see the last slide again for just a moment? Yeah. Yes. Sir, I just have a question. Do we need to memorize these the names of these drugs which fall under each category, or is this just something we should be using as a resource? No. Again, depends. If you are working as a practitioner, then definitely there is no need to memorize these things. Normally, as a clinical practitioner, we have like databases and we follow our clinical decision based on that database. But if you are a student and you have to appear in an exam, definitely you have to memorize that. If there is a question in exam that what is post antibiotic effect and tell me the names of different antibiotics having post antibiotic effect, definitely only if you memorize that you will be able to answer that question in exam. Fine. But as a practitioner, it's not necessarily you memorize or cram that thing. आप with the passage of time automatically आपको समझ आ जाता है. Like as a practitioner, you will daily give the dose to the patient, so there is no need to like memorize. वो आपकी practice हो जाएगी. So it's your routine practice. ठीक है. So likewise, patient factors, renal impairment, and practically this is very important. Again, now listen, again, your basic pharmacological concept that will help you to apply that in a clinical condition. Like if the drugs excrete from the kidney, it means that there is need to adjust the dose of that drug in renal impairment. Say for example, most common example is the aminoglycoside. You know, the aminoglycosides are the antibiotics which are totally water soluble. You know why? You know one of the main reasons of the metabolism of the drugs in the body? One of the main reasons is we just want to convert the more
लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू वाटर सॉल्युबल ड्रग, ठीक है, जो आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए. But the case like aminoglycoside, which is already a water soluble drug, so zero metabolism in the body, totally excrete from the kidney. So it means there is need to adjust the dose in case of renal impairment, because when there is a renal impairment, excretion reduces. It means the plasma concentration of the drug increases, which increase chances of having toxicity. Again, aminoglycoside again associated with the ototoxicity and nephrotoxicity. Likewise, in the hepatic impairment, the drugs like chloramphenicol, clindamycin, ये आपकी मैक्रोलाइड्स हैं. इसी तरह आपकी फ्लैजल जो है मेट्रोनिडाजोल, ये एक्सक्रीट होती हैं थ्रू हेपेटिक पाथवे, ठीक है. सो उससे हम क्या करते हैं, डोज एडजस्ट करते हैं. किडनी के केस में नॉर्मली हम देखते हैं क्रेटिन एंड क्लियरेंस. Creatinine clearance is used to assess the kidney function, ठीक है. इसी तरह एक चाइल्ड पफ स्कोर होता है. चाइल्ड पफ स्कोर इज यूज्ड टू चेक द हेपेटिक फंक्शन. तो इसकी आगे डिटेल्स हैं कि क्रेटिनिन क्लियरेंस कितनी हो तो डोज कितनी रखनी है, और चाइल्ड पफ स्कोर कितना हो तो हेपेटिक. ये डिटेल्स फिर नेक्स्ट कभी करेंगे. ठीक हो गया. पेशेंट है अभी मेटाबॉलिज्म से आपकी the aminoglycoside to enter in the brain, which is a water soluble drug, ठीक है. तो उसमें बड़े टाइट जंक्शन होते हैं. बट देयर आर टू कंडीशंस. अनइन्फ्लेम्ड मेनिंजीज, तो आपकी पेनिट्रेशन बहुत कम होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की. बट व्हेन द मेनिंजीज आर इन्फ्लेम्ड तो पेनिट्रेशन कुछ बेहतर हो जाती है. तो डेफिनेटली अगर मेनिंजाइटिस नहीं है तो वो नहीं एंटर होगी, अगर है तो. इसी तरह देखें वैंकोमाइसिन की एग्जांपल है, ठीक है. वैंकोमाइसिन की कंसंट्रेशन 0 होती है व्हेन द मेनिंजीज आर अनइन्फ्लेम्ड, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है व्हेन द मेनिंजीज आर इन्फ्लेम्ड. सो दिस इज अनदर वेरिएबल. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, ईदर लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है. सो सिंपली अनदर कॉन्सेप्ट. लाइकवाइज अभी आपने बात की थी स्पेक्ट्रम ऑफ द एंटीबायोटिक. सो नैरो स्पेक्ट्रम है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है और broad spectrum. Narrow spectrum effective only against one class, like anti-TB drug mycobacteria के against है. Extended spectrum है कुछ ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव, ठीक है. और इसी तरह broad spectrum जो है both gram positive and negative and other miscellaneous microbes. Again, another practical use of antibiotic is the prophylactic use. Prophylactic use means we just try to avoid the infection, especially in surgical procedures, ठीक है. तो surgical procedures में now again before taking decision to either start or not start antibiotic, we must be knowing the classification of this wound classification. इसमें 4 तरह की classification है. One is the clean infection, clean contaminated infection, contaminated infection and dirty infections, ठीक है. फिर हम इसकी डिटेल में तो नहीं भी जाएंगे बस, बट ये है कि वी मस्ट बी नोइंग दैट which type of infection is this, and then based on that we'll take decision to start antibiotic. Again different types of operations and different types of common pathogens involved in that. Now one thing is very important. This is another like summary of guidelines of American Society of Health System pharmacist. Now one thing is important to discuss here. In most of like operations or surgical prophylactic cases, it is recommended to start with the cefazolin. You know, cefazolin is a first generation cephalosporin. ठीक है. And normally it is recommended to give only one dose before starting surgery. It is as per IDSA guideline, Infectious Disease Society of America. If either it is clean surgery or clean contaminated surgery, ठीक है.
या clean surgery है या clean contaminated surgery है, then the guidelines are to only give 1 dose of cefazolin or maximum 2 doses of cefazolin before starting surgery. And if surgical procedure time like expand थोड़ा कर जाए, then we also give the perioperative dose. यानी during operation भी एक dose दे सकते हैं cefazolin की, ठीक है. और in case if there is an involvement of anaerobes, then we can add the metronidazole. लेकिन इन पाकिस्तान हमने देखा है कि किसी का सर्जिकल प्रोसीजर हो तो हम एक हफ्ता पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें और एक हफ्ते बाद तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन कंटिन्यू करते हैं, विच इज टोटली इरेशनल प्रैक्टिस. ये भी शायद गाइडलाइन आपको नजर ना आ रही हो, ये IDSA की गाइडलाइंस है, इनफेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, लेकिन उसकी भी समरी मेन यही है, सेफाजोलिन दे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज में. Likewise, infection. If the patient is infected, then again there are different guidelines which tells us about which one is the drug of choice and which one is the alternative drug. So अगर हम इन सब को देखें थोड़ा सा, मैंने एक फ्लो शीट में समरी में देखा है कि हम सबसे पहले या तो इन्फेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. We'll start with the prophylaxis. Prophylaxis is the giving antibiotic when there is no infection. अगर कोई infection ना हो and we give the antibiotic, it means that we are giving prophylactic antibiotic. Either it is medical prophylaxis or surgical prophylaxis. Normally we mostly give surgical prophylaxis, but in Pakistan medical prophylaxis is also very common practice. बहुत common है कि हम medical prophylaxis करते हैं. Then ये infection हो गया. Infection mean the microbe like entered in the body, started multiplying and like started like destroying different cells. So it's a preemptive antibiotics, ठीक है, preemptive है. Normally we don't use the word preemptive, it's empirical. Because क्या होता है, normally after infection the patient को क्या symptoms show होने शुरू हो जाते हैं. So then we'll start empirical. Now empiric means starting antibiotic because based on the symptoms without knowing the exact microbe. अभी microbe का हमें पता नहीं चला. We only like patient is having symptoms related to the pneumonia, so we started antibiotic related to the pneumonia. ठीक है, जो guidelines हैं. Likewise, if the patient is having symptoms related to the UTI, तो UTI तो empiric है. But once we get the culture report, अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ culture reports. Once we get the result of the culture report, it means pathogen isolation. Then we'll go for the definitive therapy, and definitive therapy is based on the culture result. अभी आपको मैं culture reports कुछ एक दो दिखाता हूँ example के तौर पे. Then suppressive भी है resolution के तौर पे. Different causes of antimicrobial resistance क्या है? Over prescribing है, ठीक है, patient not finishing. Again in short अगर मैं बताऊँ तो irrational use है, ठीक है. Antimicrobial resistance की one of the main reasons is irrational use. अब जी बेटा, अगर ये एंटीमाइक्रोबियल हम कह रहे हैं कि ओवर मतलब ज्यादा यूज कर रहे हैं या उसकी वजह से, लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है या कोई भी साइनोसाइटिस है या इस तरह का कोई भी इशू होता है, हम उसको कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है. बट एवरी टाइम वी गिव एंटीबायोटिक्स, तो क्या वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता? ठीक हो गया. Now there are 2 points here. First thing is that we are saying that if the patient is having viral upper respiratory tract infection and we are using antibiotic, so is it causing resistance? First of all, there is a very limited evidence, direct evidence कि यार ये मैंने एंटीबायोटिक अभी खाई थी और मुझे ये रेजिस्टेंस होगी. इस तरह का कोई डायरेक्ट एविडेंस बहुत कम होता है, ठीक है, पहली बात ये बड़ा क्लियर हो जाए. एक्चुअली वी हैव द पॉपुलेशन डाटा, ठीक है, मैं जरा एज अ रिसर्चर भी बता दूं, वी हैव पॉपुलेशन डाटा. द कम्युनिटीज वेयर irrational use is very common, resistance is very common. There is a lot of published data that the populations, the countries, the communities where antibiotic use is very high, the prevalence of resistant pathogen is also very high in that area. ठीक है, तो आप जो नज़ले जुकाम के लिए कोई एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो क्या होता है,
हो सकता है कि उससे क्या हो, रेजिस्टेंट माइक्रोब डेवलप हो जाए, मर्ज हो जाए, जो बहुत होते हैं। और उससे क्या होता है, वो माइक्रोब, अच्छा एक और भी होता है, वो जरूरी नहीं वो आपकी बॉडी में रहे, वो क्या करे, वो आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाए। अब मैंने क्या किया, मुझे नजला जुकाम हुआ, मैंने एंटीबायोटिक ली, उसने क्या किया, मेरे कुछ माइक्रोब्स किल कर दिए, कुछ में रेजिस्टेंट जीन डेवलप हो गए। अब वो रेजिस्टेंट जीन वाला जो माइक्रोब था ना, जैसे मैंने बताया एसिनेटोबैक्टर इज अनदर माइक्रोब, ठीक है, लेकिन उसी फैमिली का कार्बापेनम रेजिस्टेंट एसिनेटोबैक्टर इज डिफरेंट, जिसमें एक डिफरेंट जीन एक्सप्रेस हो गए हुए। अब वो क्या होगा, वो माइक्रोब किसी मुझ में भी रह सकता है और दूसरे लोगों में भी चला जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये होता है कि हम ये जो बिला वजह एंटीबायोटिक यूज करते हैं ना, उससे क्या होता है, उस कम्युनिटी में रेजिस्टेंट माइक्रोब ज्यादा हो जाते हैं। तभी हम यही कहते हैं कि हम क्या करें, जब जरूरत है तभी एंटीबायोटिक, वो भी आगे मैं कुछ बातें करूंगा उस बारे में। अच्छा सॉरी, मैं मैसेज मुझे नजर, मैं पढ़ भी नहीं रहा, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो फिर वैसे या एंड पे कर लें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, एंड पे क्वेश्चंस कर लें, या आप देख लो उमर क्या करना है, ठीक हो गया। और सर एंड पे कर लेंगे क्वेश्चंस। हाँ एंड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें रह गई हैं, फिर उसके बाद हम कर लेते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया कि देखें ये माइक्रोब्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स ये कंडीशन में लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ विल नॉट फॉलो these practices, if will not use antibiotic as per their pharmacological effects, ठीक है, then what will happen, then there are increased chances of having resistant genes। माइक्रोब डिफरेंट मैकेनिज्म से ना, ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, आगे उनमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। क्या होता है, परमेबिलिटी कम हो जाती है, इफ्लक्स ज्यादा हो जाती है, या माइक्रोब्स क्या करते हैं, दे डेवलप प्रोड्यूस डिफरेंट एंजाइम्स विच डिस्ट्रॉय द एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, ये भी डेफिनेटली आगे जब क्लासेस पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल्स होगी कि आगे डिटेल्स कैसी हैं इनके मैकेनिज्म्स की। तो जैसे कुछ है कि डीएनए गायरेज एंजाइम से क्या होगा, इफ्लक्स पंप से क्या होगा, ठीक है, और डिफरेंट माइक्रोब क्या करते हैं, और डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस, पेनिसिलिनेज एंजाइम्स है, ठीक है। अब छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे अमोक्सिल है, अमोक्सिल इज अ पेनिसिलिन, ठीक है, बट वी स्टार्टेड विद द अमोक्सिल, जीएसके ने बनाई अमोक्सिल विच इज हैविंग अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। क्या हुआ, माइक्रोब्स डेवलप ए जीन, secreted a gene which is known as penicillinase, ठीक है, या बीटा लैक्टेमेज। तो बीटा लैक्टेमेज ने क्या किया, ये बीटा लैक्टम जो अमोक्सिल था इसे क्या करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, इसकी इफेक्टिवनेस कम होनी शुरू होगी। तो जीएसके ने क्या किया, दे डेवलप्ड अ न्यू ब्रांड ऑगमेंटन, ऑगमेंटन यानी कि अमोक्सिल की इफेक्टिवनेस को ज्यादा किया उन्होंने, तो उसका ब्रांड नेम दे दिया ऑगमेंटन। उन्होंने क्या किया, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलैनिक एसिड, amoxicillin antibiotic plus clavulanic acid is a आप कह सकते हैं टू हेल्प द amoxicillin टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, क्योंकि क्लेवोलैनिक एसिड क्या करेगा, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा जो amoxicillin को किल करेगा। तो पेनिसिलिन amoxicillin एज ए एंटीबायोटिक काम करेगी, और क्लेवोलैनिक एसिड क्या करेगा, विल ब्लॉक दैट बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कल्चर रिपोर्ट्स हैं। व्हाट इज कल्चर रिपोर्ट, कल्चर रिपोर्ट इज सिंपली पेशेंट आया विद certain condition, will simply select a sample, like this is the urine sample, हम इसे कल्चर करेंगे और सेंसिटिविटी देखेंगे। So there are two main objective of this culture report. One, to identify the microbe, like in this urine sample they identified there is Acinetobacter, and then after identifying that microbe they will check the sensitivity and the resistance, the antibiotics which are sensitive and the antibiotic which are resistant. अब ये देखें शौकत खानम की कल्चर रिपोर्ट है, अब देखें सिर्फ 2 एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। अब मैंने बताया था कोलिस्टिन बहुत ज्यादा एरियाज हैं, पोलीमैक्सिन भी ऐसी है, ठीक है। अब ये रिजर्व ग्रुप एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये सिर्फ 2 हैं, बाकी सारी रेजिस्टेंट आई हैं इस कल्चर रिपोर्ट में, ठीक हो गया। इसी तरह ये भी एक है VRR, इसमें भी सिर्फ एक कोलिस्टिन सेंसिटिव है, बाकी सारी रेजिस्टेंट है। ये क्या है, ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स, इसमें आइडेंटिफाई हुआ है स्यूडोमोनास, इसमें स्यूडोमोनास आया,
इस कल्चर रिपोर्ट में। इस तरह ये भी देखें, ये भी एक कल्चर रिपोर्ट है, इसमें क्लैप्सिला आया है, क्लैप्सिला नमूनी, ये एंटेरोबैक्टीरियसी है, एमडीआर, सिर्फ एक सेंसिटिव आया, सिर्फ टाइगीसाइक्लिन। पाकिस्तान से ये हमने एक डाटा लिया था, अराउंड मोर देन 3000 कल्चर रिपोर्ट्स। अब इसमें मैंने जो देखा पाकिस्तान से, जो हमने देखा, मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मींस कि अगर 100 कल्चर रिपोर्ट्स हैं तो उसमें से 50% से ज्यादा कल्चर रिपोर्ट में एक एंटीबायोटिक इफेक्टिव ही नहीं है, विद एक्सेप्शन टाइगीसाइक्लिन थी कुछ, पैरासिलिन टैजोबैक्टम है, सेफोपैराजोन है, आपकी मिरोपेनम, मर्टापेनम, इमीपेनम है जो कुछ सेंसिटिव है, और ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट आपकी लिनाजोलिड, डाइटोफ्यूरेंटाइन, आपकी कोलिस्टिन है। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं, मेजॉरिटी। लेकिन हमारे यहाँ है क्या, हम तो ज्यादातर कल्चर रिपोर्ट करके तो एंटीबायोटिक यूज ही नहीं करते ना। पाकिस्तान में तो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं विदाउट, यू कैन से, एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी। कल्चर रिपोर्ट्स का तो हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है, हमारा तो अल्लाह की सुपुर्द बस एंटीबायोटिक चलती है। अगर हुआ तो मर जाएगा, ना हुआ तो पेशेंट मर जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। So let's conclude this presentation. It means that after studying all that, ठीक है, ये highlighting all these points, so the conclusion is that yes, in-depth knowledge of pharmacology is very important. ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सी, एक ना स्टीवर्डशिप का, सबीहा इसहाक ने एक बड़े अच्छे 8 Ds का उसने एक स्टीवर्डशिप, ऑक्टागोनल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम बनाया, एंड दैट इज 8 Ds. First one is the right diagnosis, very important. I gave you an example of that, influenza, upper respiratory tract infection. Likewise TB, likewise हमने वो नमूनिया की एग्जांपल ली थी। तो right diagnosis is very important. उसमें वही आपकी बेसिक फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। Then right choice of drug, this is also very important. Either we should start with amoxicillin or augmentin. हमें नजला जुकाम होता है तो हम क्या करते हैं, हम फौरन मोक्सीफ्लॉक्सासिन शुरू कर देते हैं, which is very bad option. You know, according to IDSA guidelines, even there is a mild community acquired pneumonia, we should start with a macrolide like erythromycin, ठीक है, amoxicillin. So in short, जिन्होंने अभी pharmacology नहीं पढ़ी, so we should start with the narrow spectrum drugs, then we'll go for the broad spectrum. ठीक है, अगर इसी तरह किसी को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, बेचारा मरने वाला हुआ है, तो अब ये तो नहीं है ना उसे हम कहें टैबलेट खा लो, तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव द ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिरोपेनम। तो चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोजेज फॉर्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इफ देयर इज नीड टू गिव आईवी तो हम आईवी दें, अदरवाइज ना दें। आपको फार्माकोलॉजी आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि मेन, जब आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली पता है कि आईवी और ओरल का डिफरेंस क्या है। हमने जल्दी से प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करनी है तो हम आईवी देंगे, अदरवाइज वी शुड गो फॉर द ओरल। हमारे जैसे पेशेंट्स को आदत है कि हॉस्पिटल में लेट के सब कुछ खा लेना, लेकिन मेडिसिन आईवी लगवानी है, व्हिच इज क्वाइट स्ट्रेंज। ठीक है, इसी तरह डोज। अब डोज अगेन, जैसे हम वैंकोमाइसिन की हमने एग्जांपल डिस्कस की, व्हिच इज अ नैरो थेरेप्यूटिक विंडो ड्रग, उसमें तो फार्माकोकाइनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो डोज हमारी, एक्चुअली हम डोज क्यों देते हैं, ताकि कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए। इसी तरह अगर रीनल इंपेयरमेंट है तो कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, डोज कम कर देंगे। सो द राइट डोज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डोजिंग इंटरवल, डेफिनेटली डोजिंग इंटरवल विल इफेक्ट द concentration of the drug in the body. But duration is also very important, and the best example is TB. TB पाकिस्तान में बेस्ट एग्जांपल है। पाकिस्तान में XDR टाइफाइड एक प्रॉब्लम मैंने बताया, MDR TB भी तो है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है पाकिस्तान में। One of the main reasons of that MDR type TB in Pakistan is, TB में होता है 6 से 9 माह TB की ड्रग्स लेनी है, बट होता क्या है, नॉन कंप्लायंस इज वेरी हाई। होता क्या, मरीज ने 1-2 महीने खाई, इतनी ज्यादा टैबलेट्स वो खा नहीं पाता, तो वो क्या करता है, क्विट कर देता। उससे क्या होता है, माइक्रोब्स में कुछ जो टीबी का माइक्रोब है वो डॉर्मेंट फेज में रहते हैं बॉडी में, वो दोबारा एक्सप्रेस होते हैं रेजिस्टेंट होके।
तभी पाकिस्तान, इंडिया, इन ममालिक में MDR TB बहुत ज्यादा है. So we must complete the duration of that course. ठीक है. अच्छा, मैं इधर ये भी बताऊं, कुछ इन्फेक्शन में आजकल डिस्कशन चल रही है अभी कि क्या हम 3 दिन लें, 5 दिन लें, तो इस पे कुछ है. लेकिन फिर भी ये है कि जैसे नॉर्मली नमूनिया के केस में मिनिमम 5 डेज एंटीबायोटिक की थेरेपी है जो एज पर गाइडलाइंस है. इस तरह डिस्पोजल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग है. डिस्पोजल देखें, आपको पता है AMR comes under One Health approach of the world. हमारी जो WHO कुछ गाइडलाइंस बनाता है ना, उसमें है कि कुछ सेहत के ऐसे इश्यूज हैं जो वन हेल्थ अप्रोच के अंडर आते हैं. What does that mean, one health approach? One health approach means if the disease condition is connected with the human, with the animals and with the environment. With the human, with the animals and with the environment. So it means if we want to control that disease which is connected with these 3 parameters of our community, then we have to control that under one health approach. And best example is these antimicrobial resistance or the infectious disease. होता क्या है? अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. एक हॉस्पिटल से एक स्टडी पब्लिश हुई थी. उन्होंने देखा कि अभी न्यू बॉर्न बेबीज हैं, अभी वो पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में एंटीबायोटिक नहीं ली, लेकिन जब उनको देखा गया उन्हें इन्फेक्शन हो गया तो पता चला कि इन्फेक्शन उन माइक्रोब से हुआ है. एंड दोज माइक्रोब्स आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट. लाइक अ बेबी हैविंग नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एंटीबायोटिक बट स्टिल हैविंग microbe in his or her body and that microbe is multi drug resistant. कैसे है? Definitely वो transmit हुआ through mother during delivery or during the in the hospital acquired जैसे होता है. ठीक है. और because of the poor infection prevention and control policies. Likewise अभी एक बहुत ज्यादा जो डिबेट चल रही है, आपने शायद सुना हो कि जो पोल्ट्री है, आपको पता है दुनिया में अगर 100 ग्राम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है ना, तो 80 ग्राम जो है वो पोल्ट्री में या इस एनिमल हस्बेंड्रीज में यूज होती है. और ये पोल्ट्री में जो एंटीबायोटिक यूज होती है वो एज एंटीबायोटिक नहीं उसे समझते, उसे कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स. खाने में वो डाल देते हैं ताकि माइक्रोब को कोई इन्फेक्शन हो ही ना, उसे कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर है. तो वो कहते हैं, इस पे कुछ अभी है एविडेंस, वो कहते हैं कि व्हाट विल हैपन, द लाइक जो मुर्गी हैं वो खाएंगी वो ग्रोथ प्रोमोटर या खुराक, उससे क्या होगा, दोज लाइक दैट चिकन विल डेवलप द रेजिस्टेंट माइक्रोब. वो रेजिस्टेंट माइक्रोब क्या होगा, विल ट्रेवल फ्रॉम दैट चिकन टू ह्यूमन बॉडी. जब इंसान खाएगा तो उसमें आ जाएगा. ठीक हो गया. तो ये कनेक्टेड है आपका एनवायरनमेंट, एनिमल और ह्यूमन. तो डिस्पोजल भी ठीक करें. अब ये डिस्पोजल वाली बात लास्ट ये भी है कि जो जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनका जो वेस्ट होता है वो कहाँ फेंक देंगे, दरियाओं में. और दरियाओं से क्या हो सकता है, वो एनवायरनमेंट में जाएगा, एनिमल्स में जाएगा, वहां से ह्यूमन में आ सकता है. तो ये भी इम्पोर्टेंट. लास्ट वन इज द डायलॉग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द फार्मासिस्ट एंड especially for the pharmacist. If you are working as a community pharmacist or hospital pharmacist, the counseling is the most important. ठीक है. So these are the few ways through which we can rationalize the use. Or definitely for doing that, we must be having a very good background knowledge of pharmacology. चलें इसको रहने देते हैं अभी. Lastly, ये पाकिस्तान से कुछ स्टडी है, शौकत खानम से है. ये भी शौकत खानम से है, मेरोपनम की यूज को रैशनलाइज किया है. ये गुरकी हॉस्पिटल से है, सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में एंटीबायोटिक के यूज को रैशनलाइज किया. और ये अभी रिसेंटली हमने डीएस्केलेशन पे काम किया. गुरकी का डाटा दैट के गुरकी हॉस्पिटल में बेस्ड ऑन द कल्चर रिपोर्ट. अब अगर कल्चर रिपोर्ट आ गई है तो हम क्या करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से नैरो स्पेक्ट्रम पे चले जाएं. सो मीन टू से दैट देयर आर फ्यू एग्जांपल्स वेयर alhamdulillah hospital pharmacists are working very good, like as an infectious disease pharmacist they are doing a great job and they are trying to improve the antibiotic use, because inshallah as I told you earlier कि आप pharmacology पे पढ़ेंगे तो आपकी जो fields जो हैं, जैसे एक क्या है इंशाल्लाह वो तो बाहर ज्यादा है,
कि आप किसी ड्रग डिस्कवरी में जाएंगे, अब नया पाथवे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्या है, टीचिंग है, जैसे अब टीचिंग करेंगे। थर्ड मेन implication of pharmacology knowledge is as a clinical pharmacist, especially infectious disease pharmacist। और पाकिस्तान में तो अब काफी लोग हैं भी जो स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट हैं हॉस्पिटल में, और वो सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज के फार्मासिस्ट हैं। लाइक वो फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ इन्फेक्शंस की जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके यूज को रैशनलाइज करते हैं। शौकत में है, गुरकी में है, शिफा में है, ठीक है, आगाह में है। तो ये वहां से कुछ डाटा है जिसमें स्टीवर्डशिप एक्टिविटी से फार्मासिस्ट ने अपने बेसिक जो नॉलेज है, फार्माकोलॉजिकल नॉलेज, उसे इंप्लीमेंट करके मरीजों में अद्वियात के यूज को रैशनलाइज किया है। लास्ट में प्रेजेंटेशन पे है द थॉटलेस पर्सन, फ्लेमिंग, जिसने सबसे पहले पेनिसिलिन बनाई थी। ही सेड के thoughtless person playing with the penicillin treatment is morally responsible for the death of the man who succumbs to the infection with the penicillin resistant microbes। जो लोग पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ठीक नहीं करेंगे, वो क्या होगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंट पैथोजन आएंगे। और ये आई होप दिस ईवल कैन बी अवर्टेड। ही सेड के इंशाल्लाह लोग क्या करेंगे, अगर फार्माकोलॉजी अच्छी पढ़ेंगे, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज होगा, देन दे विल बी एबल टू like avoid that conditions। No, thank you so much। जी बेटा, आप कोई क्वेश्चन है तो you can ask। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इट्स निकत फ्रॉम लाहौर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। सर एक्चुअली आपसे ना एक प्रैक्टिस के बारे में पूछना था। नाउ डेज मैंने नोटिस किया कि डॉक्टर्स जो हैं वो एजिथ्रोमाइसिन लिख रहे हैं एक्ने के लिए, कोई 15 डेज के लिए लिख रहा है और कोई 30 डेज के लिए। तो ये रैशनल है? मतलब मुझे समझ नहीं आई कि एक्ने में जो है वो एजिथ्रो का यूज ऑलरेडी जो है वो टाइफाइड में ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो रिजर्व रखते हैं इसको, तो फिर एक्ने में अगर इस तरह यूज करने लगेंगे तो फिर कैसे इसकी रेजिस्टेंस कवर होगी? तो ये रैशनल है? अच्छा, आप कहाँ से हैं, किस हॉस्पिटल से हैं? सर आई एम फ्रॉम फिरोज वाला THQ हॉस्पिटल। अच्छा, one thing is very important for the rationality of antibiotics। You know, quite unfortunately, I don't know about your hospital, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल में we don't have our own guidelines to prescribe antibiotic। ठीक है। मैंने जो देखा है ना, हमारे पाकिस्तान में इशू क्या है, हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस को लोकल पे फॉलो करते हैं। हम समझते हैं जो BNF ने लिख दिया या CMDT ने लिख दिया है, ठीक है, हम वो ही पाकिस्तान में भी फॉलो करें, विच इज टोटली इररेशनल। देखिए, अमेरिका में, UK में हम नॉर्मली यहाँ अमेरिकन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, यहाँ ब्रिटिश गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। उनकी जो गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस किसके लिए हैं? वो उनके लिए, वो उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं based on their own culture reports, based on the prevalence of microbes, कि वहां माइक्रोब्स कैसे हैं और उनकी रेजिस्टेंस कैसी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा बड़ा एक क्लियर इस पे स्टैंस है कि हमें अपनी गाइडलाइंस पे काम करना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो उसका आंसर ये है। अच्छा, इस आपके बात है कि क्या ये रैशनल है कि इररेशनल है। पाकिस्तान में वैसे ही इस पे है, रिकमेंडेशन है कि पाकिस्तान में हमें क्या करना चाहिए, एजिथ्रो को वैसे रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, क्यों? पाकिस्तान में एक्सटीआर टाइफाइड है, और एक्सटीआर टाइफाइड में पाकिस्तान में जो माइक्रोब आइडेंटिफाई हुए हैं वो सिर्फ जो सेंसिटिव हैं वो एजिथ्रो के अगेंस्ट हैं पर ओरल। तो अगर मैं आपका आंसर दूं तो सिंपली इररेशनल है कि इतना हमें नहीं देनी चाहिए एजिथ्रो पाकिस्तान में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक और बात हम जरा क्लियर कर लें। बीइंग अ फार्मासिस्ट, हम ये ना देखा करें कि डॉक्टर ये लिख रहा है तो क्या है। ठीक है, हमें खुद भी देखना पड़ेगा कि रिकमेंडेड क्या है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ ना, एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है कि हम अपनी अभी तक हॉस्पिटल कल्चर देखे ना। हो सकता है कि आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रही हैं वहां की टोटल सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस जो माइक्रोब की डिफरेंट है, जो कराची में लोग बैठे हैं उनके डिफरेंट हो।
तो हमें पहले अपने इंडिजिनस डाटा पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। मीनवाइल जब तक नहीं होता, डेफिनेटली हमें इंटरनेशनल गाइडलाइंस को भी देखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कल्चर सेंसिटिविटी पे तो काम वैसे भी नहीं होता, प्राइवेट में ही ज्यादा होता है। तो ओवरऑल डॉक्टर की भी यही कोशिश होती है कि इकोनॉमिकल बर्डन ना डाला जाए। तो सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तो हालात ही उस तरह के होते हैं कि हमारा तो फोकस ही इस चीज के ऊपर नहीं होता है। तो कोई अपना इंटरेस्ट ले ले तो ले ले, अदरवाइज यही होता है कि मेडिसिन चोरी, मेडिसिन पिलफरेज, ये सब चलता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अभी जो 2-3 बुक्स हैं उसको यहाँ फिर फॉलो करें। एक तो WHO ने अभी रिसेंटली एक बुकलेट बनाई है, अवेयर एक्सेस वॉच और रिजर्व ग्रुप एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन बेस्ड की है। एक तो वो रख लें, वो बड़ी अच्छी सी है, टू द पॉइंट है। BNF भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अवेयर ज्यादा अच्छी है। इसी तरह अगर कर सकते हैं तो एक सैनफोर्ड की है, वो भी अच्छी है, वो भी टू द पॉइंट है। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन? Assalamualaikum, sir. I am a recent graduate from Punjab University College of Pharmacy and a past internee and volunteer at Shaukat Khanum Hospital. So I have like 3 questions that I would like to go through them one by one. So may I? Yeah, sure. Okay, so my first question is, what is the difference between preemptive and prophylactic use of an antibiotic? Because I could not find it over the internet. So can you please clarify? I also mentioned that during my lecture that practically it's only prophylactic. Theoretically, yes, there is a term in pharmacology books that preemptive, but it's prophylactic use. ठीक है? Okay. Why cefazolin is the mostly used drug for surgical perioperative choice according to the table represented in the slides? I could see like most of the surgeries have the pre-operative choice of cefazolin. So why is that the most preferred one? That's the reason. Okay. The first generation cephalosporin is having good activity against gram-positive microbes with the minimum activity against gram-negative, and mostly based on the culture reports or the clinical data of the patients having surgical site infection. They came to know that mostly the gram-positive microbes are involved in surgical site infections. So just to avoid that gram-positive microbe-associated surgical site infection, so it's better to go only the antibiotic which is effective against gram-positive. There is no need to cover the gram-negative microbe, like to kill the gram-negative microbes. So that's why, based on the like clinical trials, the researchers came to know, or the clinicians came to know, that the cefazolin, which is effective, preferably like having more effectiveness against gram-positive as compared to gram-negative, which is the best option. So this is one of the main reasons. Is it? Okay, so does that means like that cefazolin is one of those drugs or one of those antimicrobials which covers the largest number of gram-positive bacteria? Or mainly streptococcus or staphylococcus involved in the surgical site infections. Okay, and my last question is that AMR and culture sensitivity can vary from patient to patient. So how do we decide which generations? Sorry, do you want to say something? Yeah, just want to add one thing that Yeah, again, if you see the presentation, I classify the wounds into 4 classes: clean, contaminated, contaminated. So it's mainly for the clean and clean contaminated procedures. We'll go for the cefazolin. But if it is contaminated, it means that already there is an infection. So the final decision is based on the culture report, because then the culture will tell us the kind of microbe involved in that contaminated infection of that wound. So it's mainly for clean and clean contaminated type of surgical procedures. No, your next question. Okay. Well, actually, I'm not pretty much still clear about the answer you just gave, but I hope if you have any follow-up lectures, I could, maybe get more information on that. Okay, and my last question is, AMR and culture sensitivity can vary from patient to patient, right? So how do we decide which generation cephalosporin is the prime choice? Is the prime I'm really choice? not. Yes, because I think I really need in-depth clarification on cephalosporin generation use, which is not actually taught to us during our degree. So it means what I get from your point, that you want to say that because the result of the culture sensitivity
varies from patient to patient. So Yes. definitely based on that, we must like give different drug to one patient and different to other patient. Okay, for that, there are two types of antibiotics treatment. One is the empirical, one is the definitive. Empirical mean we don't know the exact causative agent. We don't know the resistance pattern in that particular patient. So in that case, we only follow the population data. Clear? If you remember that slide which I shared with you about community-acquired pneumonia, and that's the data from the America. In America, they know that if the patient is having community-acquired pneumonia, and if we don't have the culture report of that particular patient, but overall in the total population of America, the most common causative agents of community-acquired pneumonia are that mycoplasma, streptococcus, chlamydia, haemophilus, and influenza. So they have guidelines that if the patient is having community-acquired pneumonia in America, then as an empirical therapy, we should give this antibiotic, say for example, macrolide, first line, and then quinolones, and so on. Likewise, if the patient is having hospital-acquired pneumonia, then the most common causative agents in America associated with the hospital-acquired pneumonia are Pseudomonas, Staphylococcus, Acinetobacter. So in according to the guidelines for the empiric therapy, we should cover like give 2 antibiotics against gram-negative and 1 antibiotic for gram-positive. So we should give 3 antibiotics as an empirical therapy. But your question is about the different culture sensitivity report of different patient. That's about the definitive therapy. After getting the culture report, definitely will adjust or will de-escalate the last slide. De-escalation of antibiotic. Will de-escalate and will antibiotic based on the culture report. Right. So basically, our choice is going to depend on first the culture test, and then we are going to follow the guidelines of the treatment of that specific disease. And then we're going to select that most suitable drug. Yeah, for empirical therapy is before getting the report of culture sensitivity report. We'll follow the population data. What are the prevalent microbes in that population, and what's the sensitivity or the resistance pattern of the antibiotic in that population. But once we get the culture report, then we can go for the patient specific therapy. Okay, right. Now, I just want to request one thing. Like, this information was new to me that you said in empiric therapy, we always prefer 2 gram-negative antibiotics and 1 gram-positive antibiotic until we get the culture test. 1 gram-positive and 2 gram-negative. Yeah, I guess you said that. Right? Hospital acquired. Yeah. So if we are going to have any follow-up lectures with PharmaEnclave on antibiotics use with respect to specific diseases, maybe we can focus the treatment plan according to this pattern. Sure. But you can also see that in IDSA guideline, Infectious Disease Society of America, or ACCP guideline as well, American College of Clinical Pharmacy. According to both these guidelines, we should cover as an empirical therapy 2 for gram-negative and 1 for gram-positive. Okay, thank you so much, sir. Welcome.